Hello students, welcome to Neetu Agarwal classes again. I hope you are all well and successfully promoted to the next class with very good marks. So from today onwards we are starting our accounting videos for 12th class. Let's start with the first topic, accounting for not-for-profit organizations. Let's start it now. Accounting for not-for-profit organizations. Not-for-profit organizations, or you can say non-profit making organizations, right? Means they are not making profit making as their whole sole motive, right? What are these organizations? First of all, we know accounting, right? It is kind of methods from which we assess the income, right, profits of our businesses, and we maintain our accounts very well with the accounting concept and principles. And non-profit organizations are those organizations, those organizations which are established, right, which are established for the society needs, right, for the society needs to make it much better, and for rendering those services which are of like a very service kind of nature, like hospitals, schools. Okay, so these are kind of functions or which our society needs very much, right? And if these occupations, if these services are going through profit making, so it will not be a good one. So government also suggests that these kind of services should be with the not for profit motive. So जो भी consumers हैं, जो भी उनके students हैं या whatever the customers are, they can easily avail their services at the reasonable prices. Okay, so wholesale profit making जो motive है वो इन businesses में नहीं होना चाहिए. रादर देन हम बिजनेस ही कहेंगे इनको भी, ऑब्वियसली, क्योंकि एक संस्थाएं जब ये बनानी पड़ती हैं तो इनको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो अर्निंग्स चाहिए. एंड इवन दीज चैरिटेबल सोसाइटीज, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, NGOs, all these are also charging some fees or membership, something, or subscription, or some kind of they can survive, they can earn something to run their organization from. So not for profit making organization, basically those organizations that are established for rendering the services and not for the earning profits. So major differences here is this: they are not with the wholesale profit making motive. They are here established for rendering the service. Okay, the core motive, the core mission is there to render the service, to make the society literally educated, right? And the hospitality, in case of hospitals, like everyone should get medical facilities. So overall standard of living can be raised. Now फीचर्स क्या क्या हैं इसके, कि कैसे हम इसको पहचानते हैं. जैसे हम कहते थे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है. सेम वही है कि मेन तो इसका देखिए यही रीज़न है कि ये अर्निंग प्रॉफिट जो है ना, इसका मेजर नहीं होता मोटिव. और इनकी जो सब्सक्रिप्शंस हैं या मेंबरशिप फीस है या आपको उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी पड़ती है, बहुत ही नॉमिनल होती है, बहुत ही रीजनेबल होती है. डिफरेंट आइडेंटिटी है लाइक अदर बिजनेसेस. मतलब जो मैनेज कर रहे हैं, दे आर नॉट द sole proprietors of this business. Okay, they are hired, they are employed. Okay, so organization की identity और जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, उनकी आइडेंटिटी से वो डिफरेंट है. दे आर नॉट
होलसेल लायबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस रेंडर करते हैं, कोर मोटिव इज सर्विस रेंडर करना। फॉर्म में क्या जाना जाएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनको सोसाइटी या ट्रस्ट के नाम पे, सोसाइटीज के थ्रू, ठीक है, इस तरह से इनको फॉर्म किया जाता है। उसके अंडर कोई नाम, बेशक अलग स्कूल्स के नाम अलग होते हैं, हॉस्पिटल्स के नाम होते हैं, बट एक बेसिक जो ओरिजिनल उनका जो सोसाइटी के अंडर या जो भी ट्रस्ट के अंडर वो बने हुए होते हैं, वो स्टार्टिंग से चल रहा होता है। फंडिंग इनकी कहाँ से आती है, देखिए जो हम लोग इनको फीस पे करते हैं, या रजिस्ट्रेशन फीस या मेंबरशिप फीस, क्लब्स ये जो पे करते हैं यहीं से, या मेजरली इनकी डोनेशन से इनको फंडिंग्स मिलती हैं, या गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है। अकाउंटिंग, ये नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही फॉलो करते हैं, जस्ट थोड़े से चेंजेस हैं, वी विल स्टडी इट लेटर। मोटिव, यहाँ पे कोर मोटिव हमारा सर्विस ही है। ये दे आर नॉट इन लाइक कि मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं, दे आर हेयर फॉर ओनली सर्विस मोटिव। ओके, सो अकाउंटिंग कैसे करते हैं इनकी, बेसिकली अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये तो हमने पढ़ लिया कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्वियसली इनके नाम से ही हमें आइडिया हो जाएगा कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, बट इनकी अकाउंटिंग किस तरह से डिफरेंस है। देखिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश बुक, लेजर्स, इन सब के थ्रू, ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम ये सब चीजें, फाइनल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, बट हियर इन द केस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वी विल मेक receipts and payment account first. Second is income and expenditure account, and the third one is balance sheet. Balance sheet is a must, right? Receipts and payment account is just like your cash book. Okay, but it is not a total cash book replacement, but it मतलब उन्होंने क्यों क्या कर रहा है, not for profit, these organization also needs to maintain where their money come from and where their money goes to. Okay, so उन्हें भी ये तो जरूर उनके ध्यान में रखना है, जैसे हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दे आर ऑल्सो मेकिंग ए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एंड दिस इज फॉर द होल ईयर एंड इट इज अ समरी, ठीक है, समरी फॉर द होल ईयर दैट शुड बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर. Okay, in this we have to make transactions for capital nature also and revenue nature also. Okay, next आता है income and expenditure account. Why this account is also maintained? Because यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कितना पैसा कहाँ पे जा रहा है उनका. Okay, but कैसे पता चलेगा कि वाकई वो ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं या नहीं है, राइट? मीन्स वो ठीक है, वो प्रॉफिट बनाने के लिए यहाँ पे नहीं है सोसाइटी में, दे आर हेयर टू रेंडर सर्विसेज, बट दे हैव टू सर्वाइव. ओके, सर्वाइव करने के लिए जितने भी उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एटलीस्ट उनको वो कवर अप कर रहे हैं. ओके, देन हाउ दे डिसाइड, सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से तो डिसाइड नहीं होगा, तो इसीलिए उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है यहाँ पे, कि उनकी कितनी इनकम हुई और कितने उन्होंने एक्सपेंसेस कर दिए हैं. यहाँ पे जो इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में उसको शो करते थे, नेट प्रॉफिट हुआ हमें या नेट लॉस हुआ. यहाँ पे ये लोग क्या शो करेंगे, सरप्लस और डेफिशिएट, कि मतलब उनके पास पैसा अभी सरप्लस में है या डेफिशिएट में है, कमी पड़ गई है, तो उसको उन्हें पूरा करना है एटलीस्ट जरूरतों के हिसाब से. एंड देन दे विल मेक द बैलेंस शीट. एज यू नो, एवरी टाइम इट इज अ फाइनल स्टेटमेंट. ओके, नाउ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीजें मेंटेन करती हैं, ठीक है, क्या क्या अकाउंटिंग जो उनके अकाउंटिंग बुक्स हैं वो क्या क्या मेंटेन करती हैं. फर्स्ट दे मेंटेन कैश बुक, लेजर if they regularly keep their records, right? Regularly keep their records only if. Okay, then register of members, obviously these are the societies. Okay, so maybe there are members also,
सो वहाँ पे जो है मेंबरशिप फीस एंड मेंबर्स का रिकॉर्ड, उनको जो भी बेनिफिट्स वहाँ पे मिलते हैं, तो उसके लिए उन्हें मेंबर्स का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं थोड़े से, उनका कितना रिकॉर्ड रखा जाता है, तो एवरी मेंबर का यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे कि नेम, प्लेस, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वॉट एवर, और जो भी उनका वहाँ पे मेंबरशिप मतलब फीस दी गई है वो भी वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। देन द नेक्स्ट इज रजिस्टर ऑफ एसेट्स। एसेट्स इज लाइक कि ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट दे हैव टू कीप सम एसेट्स, some premises to use for the services of the ऑर्गेनाइजेशन। तो एसेट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, जिस भी काम में वो जैसे स्कूल्स ही हैं, ठीक है, उनका फर्नीचर हो सकता है, उनके करिकुलम से रिलेटेड, एक्टिविटीज रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो उनको रखनी पड़ती हैं। लैब्स का सामान है, बुक्स हैं, ठीक है, फर्नीचर है, बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो उनको, और बिल्डिंग ही है ऑब्वियसली, तो वो उनके प्रीमाइसेस, उनके एसेट्स हैं, दोज आर द एसेट्स। तो वो उनको एक रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं अलग अलग कि उनके पास क्या क्या एसेट्स हैं। नेक्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, income and expenditure account and balance sheet. These are the same I told you earlier. Okay. Next is, okay, where do they earn their survival needs? ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर नॉट हेयर टू मेकिंग प्रॉफिट एज देयर होल एम, बट हाउ डू दे सर्वाइव, उनको पैसा आता कहाँ से है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कुछ उनसे काम होता है तो बहुत ही मिनिमल सी, मतलब बहुत ही रीजनेबल, बहुत नॉमिनल सी फीस होती है, या मेंबर्स हर कोई तो नहीं बनता, ठीक है ना। तो उसके लिए उनके पास क्या क्या जरिए हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेजरली डोनेशंस आती हैं उनको, ठीक है, कुछ उनके कॉन्टैक्ट्स में रिनाउंड पर्सन्स या गवर्नमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं से उनको डोनेशंस मिलती रहती हैं। मेंबर्स जितने भी बनते हैं वो मेंबरशिप उसमें फीस कंट्रीब्यूट करते हैं। एंट्रेंस फीस, व्हेन एवर दे आर मेकिंग सम इवेंट्स, दे आर शोइंग some kind of events, then they charge entrance fees for that. So they are hosting some events like, okay, then of their organization like cultural कुछ समथिंग हो सकता है, कल्चरल इवेंट हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो सकता है रिलेटेड टू देयर फील्ड। ओके, एडमिशन फीस हो सकती है, अगर वे कोई कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो एडमिशन फीस हो सकती है, स्पेशल रिसिप्ट हो सकती है कुछ पर्टिकुलर फीस के चीज़ के लिए, सब्सक्रिप्शन नॉर्मली जो वो चीज़ बेच रहे हैं, वॉट एवर द कोर्सेज, द इवेंट सर्विसेज, जो भी है उसके लिए जो भी वो कर रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों से इनकी अर्निंग्स होती है जिनको ये सेव करते हैं और स्पेशली क्या कहते हैं एक तरीके से उसको यूज़ करते हैं और उन्हीं के थ्रू वो और ज़्यादा हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी गो फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेस कैश बुक। ठीक है, मतलब मैंने अभी बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट इज अ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर कैश बुक, बट कैश बुक इज मेंटेन्ड। व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर वी टॉकिंग अबाउट? बेसिस इज लाइक कैश बुक जो है, लाइक कैश बुक जो है वो हम डेली बेसिस पे बनाते हैं, राइट, डेली बेसिस पे मेंटेन करते हैं, बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारा समरी टाइप होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तब हम मेंटेन करते हैं उसको। नेक्स्ट आता है पीरियड, लाइक ये हमारा डेली बेसिस के लिए है, डे टू डे बेसिस पे हम उसे वो कर सकते हैं, डेली बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम और चीजें बनाते हैं। रादर देन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के थ्रू ही बनाया जाता है। डेट लाइक ये जो है पूरे ईयर के लिए बनता है रिसिप्ट्स एंड अकाउंट, पेमेंट अकाउंट, एंड कैश बुक इज फॉर अ पर्टिकुलर डे, राइट, डेट वाइज बनता है, बिल्कुल। ओके, देन इंस्टीट्यूशन, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकता, ओनली नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज बना सकते हैं। कैश बुक जो है वो कोई भी बना सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एवरीबडी कैन मेक इट। Okay, even these organizations can also make the cash book for their use, but they need to prepare receipts and payments account.
टाइटल हम वही देते, यहाँ पे हम कैश बुक डेबिट एंड क्रेडिट दे देते थे, यहाँ पे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट देंगे, डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है क्रेडिट साइड्स. ओके, देन लेजर फोलियो, दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस. लेजर फोलियो हम कैश में बनाते थे बट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं बनाते हैं. ठीक है, दिस आर द बेसिक डिफरेंस. जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, देन यू विल गेट इट थ्रू. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मेन थिंग इज ऑल्सो हेयर कि हम रिसिप्ट एंड कैपिटल अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैपिटल प्लस रेवेन्यू, ओके, दोनों ही तरह की ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं. नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इट इज ऑल्सो लाइक एक्चुअली P&L अकाउंट. ओके, इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर ट्रांजेक्शन्स. पूरे के पूरे हम जो करंट ईयर ट्रांजेक्शन्स पे बेस होता है इसका. यहाँ पे जो है ये समरी होता है एट द एंड ऑफ ईयर. ओके, बट इट इज फॉर ऑल्सो फॉर द होल पीरियड, बट शुड बी मेक एट द एंड ऑफ ईयर. नेक्स्ट इज ओके, दिस इज ऑल्सो फॉर करंट ईयर ट्रांजेक्शन्स. इसमें हम क्या सबसे बड़ी बात याद रखते हैं कि प्रीवियस ईयर एंड द नेक्स्ट वेरी फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाला है. ओके, मतलब यहाँ पे हमें इन दोनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स नहीं करनी है. अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो हम कंसिडर करेंगे, पहले के लिए हमने एडवांस ले लिया है कुछ तो उसको माइनस करेंगे, या पिछले साल की कोई पेमेंट आई है वो हमें अभी कंसिडर कर रहे हैं तो वो इस साल की इनकम में नहीं कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे मैं कहने का मतलब यह है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसी साल की ट्रांजेक्शन्स रखेंगे. ओके, यहाँ पे हम एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि बोथ कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आती हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन जैसे एक्सपेंसेस भी हम इसमें शो करते हैं. नेक्स्ट इज कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. ओके, अगर कुछ प्रॉफिट होता है फिक्स्ड एसेट को सेल करने में, वेदर इवन इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल नेचर. ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह का, अगर उस पर्टिकुलर एसेट से लेके अगर हम कोई स्पेशल फंडिंग या स्पेशल काइंड ऑफ फंड हम मेंटेन कर रहे हैं देन इट्स फाइन. अदरवाइज वी विल मेक द एडजस्टमेंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दैट. ओके, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है. P&L अकाउंट की जगह हम इसको कंपेयर करते हैं कि P&L अकाउंट बाकी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करती हैं. तो इसमें डिफरेंस क्या है. बेसिकली वहाँ पे P&L अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं. यहाँ हम नेट सरप्लस और नेट डेफिशिट जो है ऑब्जेक्टिव उसका होता है कि उसको हम कैलकुलेट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता दिया आपको, इसको नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, इसको अदर ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट जब हम बनाते थे तो ट्रायल बैलेंस का यूज करते थे. उसके हमें बैलेंसेस गिवन होते थे और उससे हम इनकम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, एंड अदर जो हमारे ये जो हमारे सारे क्या कहते हैं कैश बुक जो या इस तरह से और जो हमने चीज़ें मेंटेन करी हैं, जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, उनके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे. ओके, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. दोनों में क्या फ़र्क है. सेम वही कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हमारा है वो रियल अकाउंट से डील करता है और हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से डील करता है. ठीक है, इट इज़ लाइक अ कैश बुक रिप्लेसमेंट एंड इट इज़ लाइक अ P&L अकाउंट एक्सचेंज रिप्लेसमेंट. फॉर्मेट हमने बता दिया, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम शो करते हैं डेबिट क्रेडिट साइड पे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक साइड इनकम्स एंड एक साइड एक्सपेंडिचर. इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो एक्सपेंडिचर इज ऑन डेबिट साइड एंड इनकम ऑन
क्रेडिट साइड। देन बैलेंसेस निकल आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पता चल जाता है किस तरह से हमें बैलेंस हो रही है चीज़ें, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। नेट बैलेंस पता चल जाता है आइदर इन कैश और इन बैंक बैलेंस, राइट। यहाँ पे हमें सरप्लस और डेफिशिएट पता चल जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, राइट। यहाँ पे हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों ही तरह की चीज़ें रखते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेसिकली फॉर द रेवेन्यू काइंड ऑफ नेचर ट्रांजेक्शंस। ओके, कंटेंट रिलेटेड टू टाइम पीरियड, दिस इज फॉर द करंट ईयर। एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अगर हमें कोई प्रीवियस ईयर की पेमेंट आई है या एडवांस में कोई पेमेंट आई है, इवन देन वी हैव टू consider that in receipts and payment account. Okay, so there is no bondation in receipts and payment account, but income and expenditure account is particularly for the current year, so that we can calculate ki how much is our income is and how much our expenditures are. And depreciation, receipts and payments account में there is no such thing to consider for depreciation, and depreciation is considered in income and expenditure account because यहाँ पे कैश एंड नॉन कैश दोनों ही तरह के खर्चे हम दिखाते हैं। बैलेंस शीट इज सेम एज पर द अदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी तक हम बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं सेम वैसे ही दिखाएंगे, बस यहाँ पे कैपिटल की जगह सब्सक्रिप्शंस और इस तरह से एसेट्स के नाम चेंज हो जाएंगे, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज कि हम इस चैप्टर में सबसे एक और नई चीज पढ़ते हैं, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। व्हाट इज दैट? फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज लाइक कि हमने एक सपोज एक हमने खर्चा करना है कुछ, कि हमने एक सपोज करो एक गुल्लक बना ली कि हमें एक पर्टिकुलर खर्चा हमें उसी पैसे से करना है और उसमें से जो इनकम आएगी उसी में हमने इंक्लूड कर दी, और उसी में से फर्दर अगर कुछ खर्चा आया तो उसी में से ही निकाल के हम खर्चा करेंगे, उससे कोई रिलेटेड अलग खर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि हमने एक स्पेसिफिक खर्चे के लिए या स्पेसिफिक अकाउंट के लिए हमने एक स्पेसिफिक फंड बना दिया, ठीक है, लाइक फिक्स्ड एसेट फंड, मशीनरी फंड, फर्नीचर फंड, इंडोमेंट फंड, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस फंड, कुछ भी हम इस तरह का अगर करते हैं जैसे, तो हम क्या करेंगे उस इसी में भी इसी तरह, जैसे कि हमने कभी रिडेम्पशन में आप जब पढ़ेंगे आगे कि हमें जब कोई एक पर्टिकुलर डिबेंचर हमें वापस करना होता है तो उसके लिए कई बार हम रिडेम्पशन फंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दैट फंड इज लाइक कि हम जो भी पैसा उस चीज़ से कमा रहे हैं, जो भी प्रॉफिट उस पर आएगा वो हम उसी फंड में मेंटेन करते जाएंगे एज अ रिजर्व, लाइक ओके। एंड जब भी उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा आता है देन वी कैन यूज दैट फंड, ओके। सो इट कुड बी रिस्ट्रिक्टेड वन, इट कुड बी अनरिस्ट्रिक्टेड वन, वेदर जैसी भी कंडीशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली डिसाइड करना चाहे, जैसे भी उसको कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो उस चीज़ को मेंटेन करने में, वो वहाँ पे कर सकते हैं। तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग यूज़ करती हैं, सो दैट कि उनको सर्विस मोटिव पे जब काम करना है तो उनको फंड्स की प्रॉब्लम ना आए, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड बनाती हैं ताकि जो भी उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक खर्चे हैं वो उसी फंड के थ्रू चलते रहें, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, कोई भी फिक्स एसेट फंड हो सकता है, लोन फंड्स हो सकते हैं, राइट। ओके, कुछ नई चीज़ें आप और पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम जान लें तो बढ़िया है। इससे पहले जैसे कि एंट्रेंस फीस, यहाँ पे अगर एंट्रेंस फीस जब ये लोग इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस रखती हैं या एडमिशन फीस होती है, तो अगर उसका अमाउंट थोड़ा छोटा है देन इट विल बी अ रेवेन्यू, और इफ एक कि साल का एक ही अमाउंट वो लेना है देन इट विल बी अ कैपिटल फंड, राइट। तो किसी दो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि आपने एडमिशन फी देखा वहाँ पे उसमें तो ठीक है भाई ये तो कैपिटल होगा, नो, it could be decided, it could be either revenue or capital. Life membership, it is always capital, life membership, ठीक है। आपने लाइफ टाइम एक उसमें क्लब को या सोसाइटी को एक मेंबर बनने के लिए फीस दी है, दैट इज देयर कैपिटल रिसिप्ट। स्पेशल रिसिप्ट ऑब्वियसली जब एक स्पेशल काइंड ऑफ फंड के लिए, स्पेशल खर्चे के लिए आपको ये रिसिप्ट मिल रही है उनको, तो दैट इज कैपिटल। डोनेशंस कुड बी आइदर रेवेन्यू और कैपिटल,
ठीक है, डोनेशंस जितनी भी मिलती हैं, अगर जो छोटा कुछ अमाउंट है, देन दे कैन यूज फॉर इट डेली डे टू डे एक्सपेंसेस, राइट, लाइक दे कैन कीप इट फॉर इन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू नेचर. Otherwise, if a major or large sum of money they receive, then they can keep it in the capital reserve. नेक्स्ट इज सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल. अगर स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब्स के लिए हो सकता है, अदरवाइज जिस भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका कुछ अगर पुराना प्रीमाइसिस है, एसेट्स है, अगर वो बेचते हैं और उससे कुछ उन्हें पैसा आता है, देन दैट इज द रेवेन्यू. ओके, डे टू डे सामान जो यूज होता है उनका, वो यूज बेच के अगर उनको कुछ मनी मिलता है, दैट दे कैन कीप इट एज अ रेवेन्यू इनकम. सेल ऑफ ओल्ड एसेट. ओल्ड एसेट जब वो करते हैं, ये दोनों ही तरीके से, अगर वो स्पेशल फंड उसके लिए मेंटेन करते हैं, देन दे कीप द, जैसे कि यहाँ पे स्पेशल फंड अकाउंट बेस्ड अकाउंटिंग हमने किया था, तो अगर वो उस एसेट से रिलेटेड स्पेशल फंड मेंटेन करते हैं, देन दे विल कीप इट दैट वे. ओके, अदरवाइज इट विल बी ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड इंक्लूडेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आएगी आपके पास सब्सक्रिप्शंस. सब्सक्रिप्शंस को हम वैसे ही डील करेंगे, करंट ईयर की हम जो है कैलकुलेट किया करेंगे, प्रीवियस ईयर की हम ऑब्वियसली जो है हटा देंगे, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए भी हटाएंगे. मतलब हम बेसिक एक कैलकुलेशन करेंगे, दैट विल बी सो इजी, जो कि हमें ये बताएगा कि हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शंस कितनी हैं, एंड दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड लाइक रेवेन्यू नेचर. Okay, so these are the terms. Just go through these